for me. I am in the middle of weekend just with my daughter and थोड़ा सा मुझे भाग दौड़ करनी पड़ी. So sorry about it. I will share my screen at some appropriate point in time. But why don't you maybe let me know how you want when you want me to start and. Sure. Before we start, I'll just give you a little background of where we are and where we come from. That would be great. Yeah, so here you have 9 teams and members of the teams from the state of Maharashtra, Madhya Pradesh, and Goa. These are young students who are specifically working on trying to resolve issues of water waste management, and water conservation. So these are the spectrums, but obviously through the lens of gender. So they've been working on a prototype for a month and a half, and each team, all the 9 teams, have one specific expert from the space that they're working. Somebody's working on compost, somebody's working on cooler spaces, somebody's working on menstrual health. So we have one expert designated to each team, and throughout the journey that one expert is helping them out. Apart from that, we also are providing them with master classes. We've had one masterclass on how to build a business model out of your startup, right, out of your innovation, out of your prototype. Then we had one on marketing. How do you market your product? Then we had one on finances and trying to understand, since all of these are mostly students, how do you raise the fund in order to, or how do you save money in order to put in your business? And then how do you have like a personal and business finances? How do you differentiate between those? So there we are, and today we have this amazing session again on trying to learn how to pitch their innovation as we move towards the finality of the journey. So on the 30th of November, we're going to have a final event, and all the students will be pitching their innovation. So I think that's basically where we are. Before we could start, I would just request if we could have it in the session in Hindi and English. That would be more comfortable for most of us. And by that, I yield to you. You have the floor. Please go ahead. Thank you, Vaibhavi. So just thank you all for having me here. मेरा नाम सचिन मल्हान है और एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश में कर पा रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है दोनों में करने में. और कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन बीत जाता है और एक शब्द हिंदी का मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं दोनों में कर पा रहा हूँ. तो ये जो विषय है आर्ट ऑफ पिचिंग का, दिस टॉपिक ऑफ आर्ट ऑफ पिचिंग, द अमेजिंग थिंग अबाउट इज कि इसका कोई एक फॉर्मेट नहीं है. कि अब स्पेशली नाउ, पहले जैसे हुआ करता था कि earlier things were more structured, like people said, okay, I want to know this and this and this. But more and more I'm seeing at the end of the day, really one can be very creative about, how one approaches pitching. At the end of the day, what are you trying to do? You're trying to excite someone about something you're doing. And if you excite them, then they might give you reasons like आपने अपना problem statement बहुत अच्छी तरह explain किया, अपना solution बहुत अच्छी तरह explain किया. ये सब हम वो बाद में बोलेंगे कि आपने किया, पर सच्चाई हो सकता है ऐसी है कि किसी एक चीज ने उनको कैप्टिवेट कर दिया हो, या तो किसी एक चीज ने उनको इतना इंस्पायर कर दिया हो कि वो पूरा फिर उसके बाद में वो आपके साइड पे आ गए हैं और फिर बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया है, जी क्या सॉल्यूशन आपने. पर सच्चाई है कि इमोशनली वो आपसे इन्फ्लुएंस हो गए हैं. तो इसको कैसे करते हैं? व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर दिस टू बी एबल टू पिच? let us see. And what I want to do is I want to give you some structure, but I also want to then share a link with you to listen to somebody sharing their idea. तो वो हम बाद में करेंगे, पर और उसके बाद वो देख के let us have a conversation around what is this person doing? Why is it so exciting the way
he is talking. Okay, so वो भी करेंगे हम लोग, पर पहले मैं थोड़ा ब्रेड एंड बटर नट्स एंड बोल्ट्स कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट ऑल इज बेस्ट टू इंक्लूड, किस तरह करना है, वो सब कर लेते हैं. उसके बाद फिर इंस्पिरेशन ढूंढेंगे. बिकॉज यू नो कभी कभी लाइक आई डोंट नो इफ यू नो, बट जैसे बुद्धिस्ट पेंटिंग में जो है कि पेंटिंग सिखाई जाती है और टेक्निकली यू हैव टू लर्न पेंटिंग एंड यू नो यू लर्न ओके दिस इज द वे टू डू इट. But once you mastered it, then you let it go completely. You let your technical part go. Then you don't have to be technical. Then you know कि technically ठीक है ये है, पर अब मुझे कूदना है. मुझे टेक्निक से मुझे ये पता नहीं लगने वाला, मुझे अब कूदना है. मुझे वो इंस्पिरेशन चाहिए कि जो पिच है मेरी वो सीधा दिल में जाए और लोग को ऐसे लगे कि दिमाग में गई है, पर एक्चुअली वो दिल में गई है. तो वो कैसे करना है, हाउ टू, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं यार लाइफ में, और बहुत सारे लोगों को सॉल्व करने हैं और सॉल्यूशंस बढ़िया हैं. तो ऐसा नहीं है कि यू नो यू आर द प्रॉब्लम वे सॉल्विंग. इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑन प्लैनेट अर्थ, और how to create an emotional connect with the person when so many problems are there, so many things need to be worked on, how to still create an emotional connect. ये हम सीखने की कोशिश करेंगे. So let me just share my screen. थोड़ा हम nuts and bolts कर लेते हैं, थोड़ा हम bread and butter कर लेते हैं. I'll ask Vaibhavi in 1 second if she can see. 1 minute, just 1 second. Visible. Okay, can you see this? Yes. Okay, fantastic. So art of pitching and ये जो आपके सामने है, this person, he is actually the person whose pitch we are going to listen to towards the end. His name is Raj Jaydev, and Raj Jaydev is Indian origin but actually an American man living in California, and maybe one of the best storytellers, pitchers that I have ever come across in my life. So that's why I like to put his face. But we'll come and we'll listen to something that he's talking about a little bit later. So what is the pitch trying to do? And best way to understand this is from the point of view of who you are pitching to. You are pitching to somebody. You are saying मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मैं इसको 3 तरह देखता हूँ. एक तो है कि one is the person should be able to say कि I see why this is a problem worth solving. It's not solution solving. मतलब कि that person should say कि हाँ मुझे दिख गया है कि क्यों ये एक महत्वपूर्ण मामला है, विषय है, और इसको प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, मैं समझ गया हूँ क्यों. तो वो एक ग्रेविटी होनी चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सॉल्व करना. दूसरा है कि ये जो आप किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, the way you are solving it is powerful. Not कि वो ये solution है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया आपका solution क्या है, but your solution is powerful. You have a powerful, and we will talk a little bit about what we mean by powerful solution. कि ऐसा क्यों है कि कई जो solutions हैं जो वो बहुत powerful होते हैं और दूसरे solutions ठीक है उनका रोल है, पर ऐसा नहीं है कि वो कुछ हिला देते हैं, कुछ सेंस होता है कि कैस्केडिंग इफेक्ट्स हैं उनके की, और कुछ भी वो उनके कारण कुछ क्रिएट होने वाला है. और फाइनली the other person should be able to feel excited, moved and inspired, you know, like a feeling, emotional feeling होनी चाहिए कि ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं इसमें और जानना चाहता हूँ, I want to learn more, I want to meet you. This kind of feelings need to be there, you know. Let me start off by giving you a kind of a rough structure. So अभी तक मैंने बस objective बोले, पर मैं थोड़ा सा rough structure. This presentation I'll share with you, so don't worry about it. I'll share with you. You can then use the same structure to make your presentation. So one way in which people begin immediately with talking about the problem. You know, हमने पहले कहा कि I see why this is a problem worth solving. So one way in which people start off is talking about someone facing a problem. You will see this later on as well in the sample, that you don't say this is the problem. कि हमारे देश में lot of children are forced to work. We know child labor is a problem, and then you start off by saying 18% of Indians blah 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 blah. That is defining the problem. आप problem के बारे में. पर दूसरा है कि
जिस पर्सन को प्रॉब्लम, हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम, जैसे ये है विशाल, विशाल 8 साल का है और विशाल की कहानी, ताकि इमीडिएटली ये पर्सनलाइज हो जाए, ताकि प्रॉब्लम कुछ एब्स्ट्रैक्टेड चीज नहीं है, कुछ वहां पे दूर कॉन्सेप्चुअल। सर यस, आप प्लीज हिंदी में बात कीजिए, मैं समझ में नहीं आ रहा कुछ। हिंदी में बात करें? हाँ सर, प्योर हिंदी में बात करूं मैं? सभी समझते हैं सर समझाओ तो आप, हम तो समझ लेंगे। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। मैं आप मुझे, तो जैसे मैं अच्छा, मैं प्योर वैभव, इज दैट ओके इफ आई स्पीक प्योरली हिंदी? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, no worries. I just thought that maybe you won't be comfortable with Hindi proper, but if you can go 100% Hindi, then that is also fine. I think everybody on board understands Hindi more or less. ठीक है, I'll do 100% हिंदी। मैं खुश हूँ हिंदी करके, मैं बस फिक्स कर रहा था क्योंकि पता नहीं, मुझे फीलिंग थी कि कई लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए मैं थोड़ा, चलो ठीक है, हिंदी में ही करते हैं। Thank you. तो हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि हमने ये बोला कि पिच का ऑब्जेक्टिव क्या है, पिच से हमें करना क्या है, और हमने ये देखा कि 3 चीजें, 3 गोल्स हैं। एक तो है कि दूसरे जिसको हम पिच कर रहे हैं उनको ये समझाना कि एक प्रॉब्लम है, कोई विषय है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि जिस तरह आप सॉल्व कर रहे हैं उसे, आपका जो जवाब है आपका जो सोल्यूशन है वो एक बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन है, वो जिस तरह आप उसको सॉल्व कर रहे हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल है, वो कन्विंस कर। तीसरा है कि एक तरह का एक्साइटमेंट क्रिएट करना, उस पर्सन में एक तरह का कनेक्शन क्रिएट करना, ताकि उनको लगे भी, उनको एहसास हो कि ये बहुत ही दिलचस्प मामला है, जिस तरह ये इसको देख रहे हैं बहुत बढ़िया है, क्रिएटिविटी है उसमें, उस तरह का फीलिंग क्रिएट करना। तो ये 3 हमने देखे कि गोल्स है, ठीक है। और अगर इन तीनों को ले तो उसके बाद मैं बोल रहा था कि ठीक है, अब इन गोल्स को लेते हैं और फिर देखते हैं किस तरह आप अपनी जो पिच है उसको कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है, उसको कैसे आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं ताकि ये आपके ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो जाए, आप ये गोल्स को मीट कर पाए, ठीक है। तो मैंने पहले कहा कि जैसे प्रॉब्लम की जो एक्सप्लेनेशन है, कभी कभी लोग क्या करते हैं ना कि प्रॉब्लम को एक कंसेप्चुअली या थियरी के जैसे एक्सप्लेन करते हैं, और ये मुझे लगता है गलती है। क्योंकि क्या होता है कि इमोशनल कनेक्ट, आदमी का इमोशनल कनेक्ट ये प्रॉब्लम को सुन के इस्टेब्लिश नहीं होता है। वो सोचते हैं कि हाँ प्रॉब्लम है, पर वो ये भी सोचते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पर अगर आप कोई जो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है उसको सीधा फ्रंट एंड सेंटर डालें और उसके बारे में आप कहानी बताएं, तब ये अलग मामला है। इसलिए मैं बोल रहा था, जैसे हमने देखा है कि और मैं बाद में जो आपको सैंपल दिखाने वाला हूँ वो ये बहुत सुंदर तरह करता है। पर जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा था कि सोचिए कि एक प्रॉब्लम है डोमेस्टिक वायलेंस का, और आप बोलने वाले हैं कि इस देश में 60% औरतें डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं इस यहाँ पे, तो आप नंबर्स देंगे, पर ये हार्ट को कनेक्ट नहीं हो रहा है, इमीडिएटली अटेंशन ग्रैब नहीं कर रहा है लोग, जो भी आपको जिनको आप पिच कर रहे हैं। तो बेटर ये है कि कोई ऐसा शख्स जो इसको फेस कर रहा है उसको सामने लाएं, और उसके एग्जाम्पल के माध्यम से फिर आप इस जो प्रॉब्लम है इसका विस्तार करें, इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो उस तरह से जैसे मैंने सामने आपके डाला है सलमा अहमद 35 साल, और सलमा की लाइफ में हो क्या रहा है, और उसके थ्रू बहुत आसानी से प्रॉब्लम को आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि इसके पीछे नंबर्स के पीछे लोग हैं जिनको इम्पैक्ट जो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम को विस्तार करने के लिए एक शुरुआत, ये एक तरीका है शुरुआत करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार यही करना पड़ता है, कभी कभी लोग
किसी के बारे में बोलते हैं, कभी कभी लोग अपना खुद का एक्सपीरियंस नरेट करते हैं, कभी कभी लोग कुछ वीडियो दिखाते हैं, पर जो भी कर रहे हैं वो प्रॉब्लम का विस्तार करने के लिए, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए पर्सनलाइज कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं 1 मिनट में रुकना चाहता हूँ। अब समझ आ रहा है पूरी तरह? आप प्लीज बोलिए, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं फिर ट्राई कर सकता हूँ। समझ आ रहा है? रजनी, समझ आ रहा है? यस मैम। है ना? समझ आ रहा है, ठीक है। वैभवी मैं कंटिन्यू करूं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो ये एक शुरुआत है कि प्रॉब्लम को कैसे एक पर्सनल इंटीमेट वे में निकालना है, दिखाना है। और हम इसमें ना 3 चीजें हम प्रॉब्लम के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक तो है कि ये महत्वपूर्ण विषय है, एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को इफेक्ट करता है। दूसरा है कि ये हमने ये प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझा है, इट इज वेल अंडरस्टूड, हमने इसको अच्छी तरह समझा है। और तीसरा है, हमने समझा भी है और हमने इसको फ्रेम, इसकी बाउंड्रीज जो हैं ये भी हमने अच्छी तरह एक्सप्लेन की हैं। जैसे अगर कोई बोलता है कि चाइल्ड लेबर इज अ बिग प्रॉब्लम, इट इज दिस नंबर ऑफ पीपल, ये वो सब ठीक है। हो सकता है कि आप ये क्लैरिफाई कर पाए कि ये महत्वपूर्ण है, कि आपने अच्छी तरह इसको समझा है। पर अगर आप बहुत ब्रॉडली इसको डिफाइन करेंगे तब ऐसे भी लगेगा कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपने इसको इतनी क्लियरली इसको डिफाइन नहीं किया है, लिमिट नहीं किया है कि आप सॉल्व कर पाएंगे। आप इसको बहुत बड़ी तरह देख रहे हैं, पर आप यहाँ आप फोकस नहीं है, उस तरह का इंप्रेशन भी क्रिएट हो सकता है। तो प्रॉब्लम का जो एक्सप्लेनेशन है आपको दिखाना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंट है, वेल अंडरस्टूड है और वेल डिफाइंड भी है। तो ये आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहानी से अगर शुरुआत करें, किसी पर्सनल कहानी से शुरुआत करें, तो फिर उसको सपोर्ट करें और दिखाएं कि आप कितनी डेप्थ में उस प्रॉब्लम को समझते हैं। जैसे आप लोग अगर एक्सेस टू वाटर पे काम कर रहे हैं या कुछ जो भी, तो ये कि आप उस प्रॉब्लम को ह्यूमन पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से समझते हैं, और आपने ये भी उसको ऐसे भी एक्सप्लेन किया है ताकि एक तरह से ऑब्वियस हो जाए कि सॉल्यूशन अभी निकलने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम सही हाथ में है, सही हाथों में है। तो उस तरह का आप सेटअप कर दें, क्योंकि अब आप आएंगे सॉल्यूशन पे, और जब आप सॉल्यूशन पे आएंगे ये थोड़ा सा ऑब्वियस होना चाहिए कि हाँ, इन्होंने प्रॉब्लम इतनी गहरी तरह समझ लिया है कि सॉल्यूशन तो इनसे ही निकल के आया है, राइट। और सॉल्यूशन पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक इंप्रेशन क्रिएट करें आप कि सॉल्यूशन अच्छी तरह सोचा हुआ है, कि उसका इम्पैक्ट क्या हो, उसका इम्प्लीकेशन क्या हो। जैसे अगर आप चाइल्ड लेबर बोले तो 1980s में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा चाइल्ड लेबर इज टेरिबल, चिल्ड्रन शुड नॉट बी फोर्स्ड टू वर्क। बट इतना कॉम्प्लेक्स मामला है, इतना कॉम्प्लेक्स मामला निकला कि इट इज रिलेटेड टू पॉवर्टी, इट इज रिलेटेड टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ट्रैफिकिंग, बहुत सारी चीजें। और लोगों ने समझा कि देखो, आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट तरह नहीं देख सकते, वरना गलतियां कर देंगे आप, क्योंकि ये मामला उलझा हुआ है अलग मामलों से। तो आपका जो सोल्यूशन है वो कंसिडर है, आपने सोच समझ के करा है, आपने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जो इंसाइट है इसमें डाला है। दूसरा है कि आपका सोल्यूशन रेजिलिएंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक चीज पे पूरा निर्भर है कि हाँ कुछ अगर हो गया, जैसे ये जो चाइल्ड लेबर का ही देख लीजिए, और बोले कि मेरा सोल्यूशन ये है कि पुलिस के साथ हम पार्टनरशिप करके चाइल्ड लेबर वालों को पकड़ लें, और पूरा आपका आइडिया पुलिस से ही पार्टनरशिप से निर्भर है, और अगर पुलिस पार्टनर नहीं करेगी तो, और ये पूरा टूट जाएगा। तो रेजिलिएंट होना चाहिए, मतलब एक तरह का जैसे ऐसा होना चाहिए कि एक चीज से उसको बिठाया नहीं जा सकते, उसके नीचे से चादर नहीं खींची जा सकती। तो आपका सोल्यूशन उस तरह का सोल्यूशन है कि
अगर ऐसे नहीं इस तरह से इस रास्ते से काम नहीं निकाल पाए तो दूसरा रास्ता भी है कि काम निकाल पाएंगे। आपने इसके बारे में सोचा है? जेनरेटिव है, जेनरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको समझाता हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड शब्द हो सकता है। जेनरेटिव का मतलब कि ये इस तरह का सोल्यूशन है कि और भी लोग इंस्पायर करके ऐसे सॉल्यूशंस क्रिएट करें। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तीन दिन पहले बहुत ही आपने पढ़ा होगा कि ईला भट्ट नाम की एक औरत का देहांत हो गया। उनकी उम्र काफी बुजुर्ग थी। उन्होंने सेवा ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था। और सेवा ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली इंडिया की सबसे, हो सकता है सबसे टॉप 3-4 प्रभावशाली विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और उन्होंने सेवा को ऐसे शुरू किया कि सेवा के थ्रू सॉरी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। हाँ, सेवा के थ्रू फूट के दूसरे लीडर्स निकले। उसका इतना इंस्पिरेशन था कि सेवा के काम से इंस्पायर होके और भी लीडर्स निकले। तो दूसरी बात यह कि जेनरेटिव मतलब कि आपका सॉल्यूशन ऐसे है कि आपको मालूम है कि सच्ची वैल्यू लोगों में है, और लोगों में अगर वो क्षमता कैपेसिटी बिल्ड हो पाए तो वो और भी सॉल्यूशन निकाल के आगे बढ़ेंगे। अकेले आपके सॉल्यूशन नहीं। बैकग्राउंड noise is coming, you might have to mute. Yeah, और फाइनली अचीवेबल है, आपका सोल्यूशन अचीवेबल है, मतलब कि हो सकता है। इतना भी ख्याली पलाव नहीं है कि सोच रखा है आपने ये करेंगे पर आप कर नहीं पाएंगे। ऐसे लगे कि ये तो बहुत ही आपका सोल्यूशन को अचीवेबल लगना चाहिए, ये गोल फुलफिल हो सकता है। तो ये छोटी चीजें हैं जो आपके सोल्यूशन के, अगर आप ये आप सोच लें, तब आपका सोल्यूशन दूसरे को लगता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन है, ये सोच समझ के किया है, ये रेजिलिएंट है, ये एक चीज से नहीं टूट पाएगा, ये दूसरों को इंस्पायर करेगा, अलग सॉल्यूशंस क्रिएट करेगा, और ये हो भी सकता है। उस तरह का वो कॉम्बिनेशन है। और अगर आप ये एलिमेंट्स डाल पाए तब आपका सॉल्यूशन पावरफुल दिखेगा। इसके बाद, और हम बहुत टाइम रखेंगे प्रश्नों के लिए, आप भी अपने प्रश्न लिख लीजिए प्लीज, ताकि बाद में आप जब हम चर्चा करें इस पे तब आप निकाल पाए। पर मैं बस ये 10 ही स्लाइड्स हैं, तो मैं इनको खत्म करके फिर हमारे पास वक्त है बात करने का। तो स्केल ऑफ इम्पैक्ट दिखाना कि ये सोल्यूशन जो है इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कि कितने लोग अफेक्ट हो सकते हैं, कितना उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। 6% जीडीपी लॉस, 6% जीडीपी लॉस हो रहा है इसके कारण, और इसको सॉल्व करें तो इतना गेन हो सकता है। 12 इंडस्ट्रीज, जैसे ये बस एग्जांपल्स हैं, पर आपको दिखाना है कि अगर आप कामयाब हुए इस सोल्यूशन को लेके तो क्या होगा, क्या हो सकता है। वो फ्यूचर का पिक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग हैं, हम सब कहानियों पे निर्भर हैं। कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप एक कहानी बना रहे हैं, और लोग आपके साथ इसलिए ही चलेंगे अगर उनको कहानी में इंटरेस्ट हो, अगर आप कहानी अच्छी तरह बोल सकें। करेक्ट? ऐसा नहीं है कि आपको हर बार कहानी बहुत बढ़िया तरह बोलनी है, या तो आप बहुत बढ़िया परफॉर्मर हैं। पर मैंने कभी कभी देखा है कि बहुत ही क्वाइट, शांत लोग जो धीरे धीरे बोलते हैं, छोटी चीजें बोलते हैं, उनका वो भी इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। तो really it is about what is it you say and how you say, not ki style and those kinds of things. तो ये बात की, ये दिखाना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ऐसा हो सकता है कि ये एलिमेंट आपको, ये स्लाइड जो अरेंजमेंट है मैं दिखा रहा हूँ, इसी ऑर्डर में डालना ये उचित नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किसको आप सर्व कर रहे हैं, कौन आपके बेनिफिशियरीज होंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये दिखाना कि आप उन लोगों को ऐसे एम्पावर कर रहे हैं
जो लोग आपके बेनिफिशियरीज होंगे, आप उनको ऐसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं कि ठीक है हम आपके लिए कोई बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, आप उनको ऐसे इंगेज कर रहे हैं ताकि वो भी सोल्यूशन का हिस्सा हो। इसके बारे में सोचिए, उनको सोल्यूशन अकेला मिल नहीं रहा है, वो सोल्यूशन के हिस्से हैं, उनका भी इसमें रोल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दिनों जब अगर आप सोल्यूशन को प्रेजेंट कर रहे हो और बोले मैं ये काम कर रहा हूँ, और ऐसे लगे कि अगर आपका नाम प्रीति है और अगर ऐसे लग रहा है कि प्रीति नहीं होती तो ये सोल्यूशन तो नहीं होगा, तो लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत ही रिस्क हुआ। पर जो बढ़िया सोल्यूशंस है, प्रीति बोलती है कि मैं 100 प्रीति खड़ी कर रही हूँ, काम में ही खड़ी कर रही हूँ, ताकि अगर ये सोल्यूशन मेरे हाथों से नहीं हो पाया तो ये मूवमेंट बन सकता है। लोग इसमें एम्पावर हो रहे हैं खुद अपनी सोल्यूशन बनाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन दिनों आपका मॉडल कस्टमर्स को, सिटीजन्स को बस एक बेनिफिशियरी के पर्सपेक्टिव से ना देखें, बट पार्टिसिपेंट को क्रिएटर पर्सपेक्टिव से देखें। ये बहुत उचित है। दिखाना आपका प्रोटोटाइप क्या है, कि आप किस तरह, और प्रोटोटाइप का यहाँ पे पर्पस क्या है, क्यों प्रोटोटाइप बनाते हैं? बस ये दिखाने के लिए कि इस तरह तो चीजें, सोल्यूशन इस तरह दिख सकता है, थोड़ा अंदाजा देने के लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसको फिर से बोल रहा हूं, अगर जिस मनुष्य को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं, उनको ये लगे कि आप सोचते हैं कि ये सोल्यूशन है, ये काम करेगा, और आप बस ऐसे ही चल रहे हैं बिना सीखे, बिना अपने अजम्पशंस को चेक किए कि हाँ जो मैं सोच रहा हूँ वो सचमुच सही है, कि मैं एक वहम में अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाना कि आप फटाफट सीखना चाहते हैं और प्रोटोटाइप के माध्यम से सीखना चाहते हैं। मतलब कुछ आप दुनिया में निकालना चाहते हैं जिसको यूज करके आप देख सकें कि लोग सच में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे मैं आपको एक रियल लाइफ कहानी बोलता हूँ कि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बात कर रहा था, और वो लोग लीगल के काम में थे, और उन्होंने कहा कि हमने एक ऐप क्रिएट कर दिया है, किसी को भी लॉयर की कोई जरूरत हो तो इस ऐप के माध्यम से वो एक फ्री लॉयर को ढूंढ सकते हैं। और 6-7 महीने बाद उनको पता लगा कि उन्होंने देखा कि काफी ज्यादा लोग इसको नहीं यूज कर रहे, बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि पक्का अगर हम ऐसी ऐप क्रिएट करेंगे तो लोग पक्का यूज करेंगे, पर नहीं हो रहा था। तो इसी अगर उन्होंने प्रोटोटाइप का अप्रोच लिया होता कि कुछ डाला होता, और इसी ऐसे डाला होता कि पता लगे कि लोगों को चाहिए क्या। हो सकता है लोगों को लॉयर नहीं चाहिए हो, लोकल कम्युनिटी में कोई पर्सन जना हो जिसको कुछ मालूम हो, उसके साथ बात करे, अपनी भाषा में हो सके, उनको वो चाहिए होता, या तो लोकल कोई एनजीओ है या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ बेटर होता, या तो किसी लॉयर से कनेक्ट करना जिसको वो जानते नहीं है, ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं है। तो उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने अज्यूम करा कि लोगों को चाहिए, इसी फॉर्म में चाहिए, बढ़िया चलेगा। तो यही इम्पोर्टेंस यही है प्रोटोटाइप का, कि आप कुछ ऐसी चीज बनाएं जो आपका पूरा सोल्यूशन हो सके नहीं हो, पर जिसके माध्यम से आप सीख पाए कि लोग कैसे बिहेव करेंगे, उनका रिस्पॉन्स कैसे होगा। यही प्रोटोटाइप है। तो प्रोटोटाइप का आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और ये एक तो है इसको करना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दूसरा है जिसको आप पिच कर रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगा कि आप नहीं सीखना चाहते, या तो आपकी सोच सीखने वाली सोच नहीं है, आपने अपना डिसाइड कर लिया है कि ऐसे ही चलेगा, दुनिया ऐसे ही चलती है और यही दुनिया वेट कर रही है मेरे लिए, मेरे सोल्यूशन के लिए, तब उनके दिमाग में ये रहेगा कि इसका चलने नहीं वाला है, इनका आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये भी दिखाना कि सीखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारे बिल्कुल आइडिया के भीतर है कि हम सीखेंगे कि लोग, अगर हमने जैसे चाइल्ड लेबर में हमने सोचा है कि हम एक लोकल सपोर्ट क्रिएट करना चाहते हैं
उन एरियाज में जहाँ पे बहुत सारा चाइल्ड लेबर होता है, जहाँ पे बालकों को रेस्टोरेंट्स में यहाँ जहाँ पे भी काम करना पड़ता है, वहाँ पे कुछ लोकल सपोर्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। तो कुछ छोटा क्रिएट करके फिर देखें कि बच्चे आते हैं नहीं आते हैं, उनके साथ अगर बातें होती हैं, उनको उनकी जरूरतें क्या है, उनको क्या सपोर्ट चाहिए, ये सब सीखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होता रहे, कॉन्स्टेंट बेटर होता रहे, उसमें आप नए नए आइडियाज डाल पाए और भी बेटर होता रहे। और फिर दिखाना कि आपकी टीम कौन है, लोग जो काम कर रहे हैं, और इसका महत्व ये है कि दिखाना कि बैलेंस अच्छा है, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं बैलेंस अच्छा है, अलग अलग लोगों की स्किल्स मैच करते हैं। हो सकता है कि मैं टेक्नोलॉजी में अच्छा हूँ, कोई और कम्युनिकेशंस में अच्छा है, कोई और रिसर्च में अच्छा है, उस तरह बैलेंस दिखाना वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं अभी प्रश्न हम करेंगे, पर वैभवी अगर 10 मिनट लोग राजदेव का वीडियो पहले 10 मिनट लोग देख सके, तो उसके बाद जो बाकी का जो वक्त है, आराम से हमारे पास 40 मिनट है, 35-40 मिनट है, हम प्रश्नों में ही स्पेंड करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि हम ये जो वीडियो है, मैंने लिंक शेयर किया है, वैभवी आपको शेयर करेगी लिंक, आप खुद आप 10 मिनट, पहले 10 मिनट, उससे बाद आगे देखने की जरूरत नहीं है, पहले 10 मिनट, और फिर वापस आके इस विषय पे हम बात करते हैं कि कैसी पिच बनानी है, जो भी आपके प्रश्न हैं, जो आपके आइडियाज हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ओके वैभवी? I will stop sharing and I will just wait for 10 minutes. देखने के बाद आप thumbs up कर दीजिएगा, तब पता लग जाएगा कि आपने देख लिया है, और फिर फ्लोर इज ओपन, उसके बाद चर्चा करेंगे इस विषय पे। Webby, do you think it's better that everybody just watches on their own? Because if you're going to stream ना, अगर आप स्ट्रीमिंग करोगे इसकी, तो हो सकता है कि एक्सपीरियंस लोगों का अलग, बेटर होगा यूट्यूब का लिंक आप भेज दीजिए, और फिर लोग खुद और उसके बाद जब लोगों ने देख लिया हो तो थम्स अप दे दीजिए बस, ठीक है, देखने के बाद। श्योर। आप सबको लिंक पहुंच चुकी है चैट में? Sachin, we have to watch the video now, right? Yes, now it's on. Okay. So I would suggest we could watch it together. What do you say? Why not? If you're confident about the streaming, let's watch it together. First 10 minutes, let's watch it together. Then है ना? प्लीज आप लोग सेपरेटली मत देखिए। अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब हो, लाइक स्ट्रीमिंग में आपको क्लियर नहीं आ रहा हो, तब आप लिंक खुद देख लीजिए, वरना वैभवी के साथ, मेरे साथ एक साथ देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओवर टू यू वैभवी। यस, थैंक यू। आवाज आ रही है सबको? Is it okay? It is pausing a bit. It is pausing a bit, but let's try. This is my favorite protest shirt. It says, "Protect your people." We made it in the basement of our community center. I've worn it at rallies, at protests, at marches, at candlelight vigils with families who have lost loved ones to police violence. I've seen how this ethic of community organizing has been able to change arresting practices, hold individual officers accountable, and allow families to feel strong and supported in the darkest moments of their lives. But when a family would come to our center and say, "My loved one got arrested, what can we do?" we didn't know how to translate the power of community organizing that we saw on the streets into the courts. We figured we're not lawyers, and so that's not our arena to make change. And so despite our belief in collective action, we would allow people that we cared about to go to court alone. 9 out of 10 times, and this is true nationally, they couldn't afford their own attorney. And so they'd have a public defender who was doing heroic work
but was often under-resourced and stretched bare with too many cases. They would face prosecutors aiming for high conviction rates, mandatory minimum sentences, and racial bias baked into every stage of the process. And so, facing those odds, stripped away from the power of community, unsure how to navigate the courts, over 90% of people that face a criminal charge in this country will take a plea deal, meaning they'll never have their fabled day in court that we talk about in television shows and in movies. And this is the untold part of the story of mass incarceration in America. How we Well, can you became stop for a the second? largest jailer in the world. या तो मैं इसको पॉज कर रहा हूँ ताकि मैं इसके हिस्से थोड़े समझा पाऊँ. इनका नाम है राज जयदेव और इनका काम है बहुत इंटरेस्टिंग कि ये समझा रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में, और मैंने जब ये सुना मैं भी हैरान था बिल्कुल, पर यूनाइटेड स्टेट्स में जितने सारे लोग ब्लैक कम्युनिटी से, बहुत जवान लोग, अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक यंग ब्लैक लोग जिनको जेल जाना पड़ता है छोटे छोटे चीजों के लिए, बहुत छोटे चीजों के लिए, जैसे उन्होंने लड़ाई करी थोड़ी पुलिस के साथ, हाथापाई भी नहीं पर जिस बात कुछ बोला, या तो कुछ छोटा ड्रग का कन्विक्शन, marijuana का कन्विक्शन, जो भी है, और वो लोग जाते हैं और उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है क्योंकि वो लोग फिर जेल में अटक जाते हैं और उनकी फैमिलीज बर्बाद हो जाती हैं, और ये बहुत, उनका रेट बहुत हाई है. बहुत सारे ऐसे जवान लोग जेल में घुसे पड़े हुए हैं, बहुत सारे. और राज जयदेव हो सकता था कि वो ऐसे एक्सप्लेन करें कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ पुटिंग इन जेल, इनकार्सरेटिंग जैसे कहते हैं, इनकार्सरेटिंग यंग ब्लैक पीपल, पर उन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं. उन्होंने सीधा शुरू किया कि ये जब एक फैमिली ऐसे किसी जवान, यूजुअली लड़के होते हैं, लड़के की फैमिली आती है, वो इतने हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं कि उनका जो बेटा है जेल में है, वो उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, और जो बच्चे की लाइफ बर्बाद हो रही है. पर अगर बच्चे की फैमिली भी है, जैसे अगर वो 21 साल का है, 22 साल का है, उसकी भी फैमिली है, उसकी फैमिली की लाइफ भी बर्बाद हो रही है, वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं. तो ये प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं कि ये एक हेल्पलेसनेस है. ये लोग कुछ सिस्टम में कुछ पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर पाते. और आप सोचिए, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स सोच रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ वहां पे मत जाइए, इंडिया में भी आप सोचें, अगर कोई इंडिया में हर 100 प्रिजनर्स जो जेल्स में हैं, उनमें 60-70 तो अंडर ट्रायल्स हैं. ये तो जाना फैक्ट, पूरा पक्का जाना फैक्ट है कि 60-70 अंडर ट्रायल्स है, मतलब उनको कन्विक्ट भी नहीं हुआ है. ऐसा नहीं है कि वो पक्का है कि वो उन्होंने करा था, तो वो हैं. तो ये भी बात कि उनके फैमिलीज का कोई रोल है क्या वो अपने फैमिली मेंबर की सहायता कर सकते हैं इस प्रोसेस में. और आप सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि ये प्रोसेस में तो बस जज होता है, लॉयर होता है, और राज जयदेव ने ये बदल दिया बिल्कुल. और थोड़ा 2 मिनट और सुनिए, if you can. Over 2 million people currently incarcerated in this country, and projections that say 1 out of 3 black men will see the inside of a prison cell at some point in their life on this trajectory. But we have a solution. We decided to be irreverent to this idea that only lawyers can impact the courts, and to penetrate the judicial system with the power, intellect, and ingenuity of community organizing. We call the approach participatory defense. It's a methodology for families and communities whose loved ones are facing charges, and how they can impact the outcome of those cases and transform the landscape of power in the courts. How it works is families whose loved ones are facing criminal charges will come to a weekly meeting, and it's half support group, half strategic planning session. And they'll build a community out of what otherwise would be an isolating and lonely experience. And they'll sit in a circle and write the names of their loved ones on a board who they're there to support. And collectively, the group will find out ways to tangibly and tactfully
impact the outcome of that case. They'll review police reports to find out inconsistencies. They'll वैभवी find areas that requires. तो यहाँ पे राज समझाना शुरू करते हैं कि हमारा आइडिया ये है कि जो परिवार के लोग हैं इन जेल में अटके हुए जवानों के परिवार के जो लोग हैं उनको हम एक रोल दे रहे हैं, उनको हम कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये जो पूरी कम्युनिटी है परिवारों की जिनके बच्चे जेल में हैं, वो लोग केस को सपोर्ट करते हैं, वो लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं, आर्गुमेंट्स क्रिएट करते हैं, चिट्ठी और रिकमेंडेशन लेटर्स क्रिएट करते हैं कि ये जो आदमी या औरत है जो ट्रायल पे है उन्होंने एक गलती की है, या तो उन्होंने गलती नहीं की है, या तो उनका कैरेक्टर अच्छा है। उस तरह से परिवार का एक रोल एस्टैब्लिश होता है और पूरी कम्युनिटी जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं अपना सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आप स्टॉप शेयर कर सकते हैं वैभवी। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस प्रॉब्लम को हाई लेवल पे एक्सप्लेन करने का नहीं सोचा। उन्होंने दिखाया कि अगर हम इस विषय को देखें, कितने सारे यंग ब्लैक मेन आदमी जो जेल में हैं, छोटे छोटे चिल्ड्रन के, अगर इस विषय को देखें तो एक टोटली अलग नजरिया कि परिवार का हिस्सा है, परिवार को पावरलेस क्यों माना जाता है, कि परिवार का रोल नहीं है। हम सोचते हैं लॉयर का रोल है, जज का रोल है, नहीं, कम्युनिटी का रोल है। सब कुछ कम्युनिटी के बारे में ही है, कम्युनिटी का इसमें रोल है, परिवार का रोल है। और परिवार अपने, और जब परिवार इन्वॉल्व हो जाता है उस बच्चे, मैं बच्चा बोल रहा हूँ, बट दीज आर 20, 21 ईयर ओल्ड, 22 ईयर ओल्ड, बट उस आदमी के फ्यूचर में जब परिवार इन्वॉल्व होता है तो जादू होता है, जादू होता है। कम्युनिटी जब इन्वॉल्व हो जाती है, जादू। और एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है कम्युनिटी को एक्टिवेट करने के लिए। और जब कम्युनिटी एक्टिवेट हो जाती है तो कम्युनिटी कभी पीछे नहीं मुड़ती है। तो जिस तरह उन्होंने इस विषय को एक्सप्लेन किया है, टोटली नॉन एकेडमिक, डीपली पर्सनल वे में, और एक, ताकि आप चौंक के रह जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। उनका प्रोजेक्ट का नाम है पार्टिसिपेटरी डिफेंस। डिफेंस का मतलब तो मालूम है आपको, पार्टिसिपेटरी, कि सबका हिस्सा डिफेंस करने में, जिसको प्रिजन में लाया जा सके। तो मैं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कितने इंजीनियस तरीके हैं आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरा जो आइडिया है पावरफुल है, मैं इसके बारे में सीखना चाहता हूँ और ये और भी पावरफुल बन जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया वो एक तरीका है, बट वो एक तरह का स्केलेटन है। उसके ऊपर क्या टंगाना है आपको, वो आप पे डिपेंडेंट है, वो क्रिएटिविटी पर। मैंने जो जैसे क्यूज दिए हैं कि अपने सोल्यूशन को कैसे चमकाना है, अपने वो सब लेके इस स्केलेटन पे, इस स्कैफोल्डिंग पे आप बहुत ही सुंदर पिच बना सकते हैं और उस पिच को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ उसका नाम है आगामी। तो मैं, हो सकता है किसी से मिलूं और मुझे लगे कि इसको ये चमकेगा। हो सकता है जो अप्रोच मैं वैभवी के साथ लूं वो अप्रोच किसी और के साथ नहीं चले। तो वो तरह का फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करना, कि ये भी समझना कि किसके साथ आप बात कर रहे हैं और किस तरह का अप्रोच, किन चीजों पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि वो उस आदमी या औरत को इंस्पिरेशन मिले, कनेक्शन मिले। तो ये भी, तो एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है, बस स्ट्रक्चर के ऊपर आप क्या करें। और मुझे लगता है सबसे बेस्ट एग्जांपल है गाना। अगर आप हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के बारे में देखें तो कोई स्क्रिप्ट कभी नहीं होती है और वहां पे रूल्स हैं कि ये करना है, पर क्या टाइम पे करना है, कितना करना है, वो सब डिपेंडेंट होता है माहौल और
वो मास्टरी की समझना कि अभी इस यहाँ पे क्या चलेगा, यहाँ पे क्या लोगों से कनेक्ट होगा, वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो प्रैक्टिस से आता है। मैं ये बोलूं कि जैसे आप करते जाते हैं, आप बेटर समझते हैं कि क्या बदलना है, क्या चीजें लोगों के साथ रियली कनेक्ट होती है। जैसे राज जयदेव, मैं उनसे बहुत बार मिला हूँ और उन्होंने मुझे बोला कि जब लोगों को दिखता है कि किसी 60-year-old मदर का इसमें रोल है कि उनका बेटा जेल में है और वो हेल्पलेस फील कर रही है, पर कुछ रोल है, तो उनकी लाइफ बदल जाती है। ये डेटा दिखा है कि डिप्रेशन कम होता है, फ्रस्ट्रेशन कम होता है, सुसाइडल टेंडेंसीज कम होती है, क्योंकि लोगों को एक उनका एक हिस्सा है, वो एक कुछ कर सकते हैं। और जब वो, अगर उनको, बेस्ट पार्ट में एक चीज बोलूं कि अगर कोई अंडर ट्रायल वो लोग बचा सके, अगर उनको अक्विटल मिल जाए, अगर जज उनको बोले कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ और आप जाइए, वो परिवार उस कम्युनिटी को नहीं छोड़ता है, वो दूसरे जो अंडर ट्रायल्स के पेरेंट्स हैं उनके साथ एंड तक लगा रहता है। तो ये सब चीजें देख के राज को लगा कि हम सब एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स हैं। हमें जब इमोशनली किसी चीज से कनेक्शन होता है, हम उसको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, हम बिल्कुल एक्साइटेड हो जाएंगे। तो वही आपको एस्टैब्लिश करना है। आप अपने साथ नहीं बात कर रहे, किसी और के साथ बात कर रहे। तो मैं रुकता हूँ और प्रश्न लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर तो मैं शेयर कर दूंगा, आई कैन शेयर द लेटेस्ट वर्जन और ऑल, बट आई थिंक क्वेश्चंस पे बेटर टाइम स्पेंड करते हैं। Thank you so much, Sachin. That was a beautiful presentation, and like always, it's the way that you pitch it to us as well. It's very important that we get connected to the story of how to bring the community together. Basically, Sachin जो कहना चाह रहे हैं कि समुदाय का हिस्सा कितना जरूरी है। जैसे सचिन, हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास मध्य प्रदेश के गांव से बच्चे हैं जो समाज के साथ बहुत काम कर रहे हैं, क्लेनलीनेस पे, वेस्ट मैनेजमेंट पर, और दूसरा है मासिक मेंस्ट्रुअल पीरियड्स पे। तो ये दोनों जगह पे उनको कम्युनिटी के साथ काम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये बिल्कुल समझ रहे हैं कि आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं, वो आप जिस तरीके से बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बच्चे भी कहीं ना कहीं वो चीज को अपना रहे हैं। बस अभी उनको वो स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे पिछली बारी जब मैं रजनी से बात करी थी, रजनी ने मुझे बताया था कि जब औरतें आती हैं सेशन में, तब औरतों के साथ अलग तरीके से बात किया जाता है, मगर जब बच्चे आते हैं, बच्चों के साथ, यूथ के साथ अलग तरीके से बात किया जाता है। वी ऑल्सो हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम सतारा, नागपुर, मुंबई, पुणे. So there's a range of students working on very different solutions that are stemming from the community itself. So I'll open the floor. आपको कोई भी प्रश्न पूछना है जहां पर आपको लग रहा है कि कहानी बतानी है पर कहानी बहुत सारी हो गई, इसको किस तरीके से हम नैरो डाउन करें। स्ट्रक्चर आपको सचिन जी ने दिया ही है पहले से ही, मगर आपकी कहानी ऐसे अलग से उठ के कैसे आएगी, अगर इस बारे में क्वेश्चन पूछना है तो आई विल कीप द फ्लोर ओपन। आप अपना इनोवेशन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हुए भी बता सकते हैं, तो सचिन जी आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको और फाइन ट्यून किया जाए। ठीक है, तो मैं फ्लोर ओपन रखूंगी, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। पिक्चर्स हमने बनाना भी शुरू किया नहीं है सचिन जी, हमने अभी तक प्रेजेंटेशन शुरू नहीं किया है, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू आस्क ऑल द क्वेश्चंस। एब्सोल्युटली, प्रेजेंटेशन शुरू किया बढ़िया है, क्योंकि आप फिर देखेंगे कि ये जो हिस्से हैं प्रेजेंटेशन के, हम उसका विस्तार कैसे करेंगे, ये जो प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन है कि कैसे हम करेंगे, और कौन सी कहानी को हम कौन सी कहानियों को इस्तेमाल करेंगे। और उन तरह के प्रश्न अभी पूछे तो बेटर है, और फिर उसके ऊपर आप एक प्रेजेंटेशन आसानी से बना पाएंगे। किसी को क्वेश्चन पूछना है? हमने एक मॉक पिचिंग किया था IWSA में, इंडियन वुमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन में, तो वहाँ पे काफी गड़बड़ हुई थी हम सभी से। हमने पहली बार ही किया था पिच, तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू आस्क कि आप सभी इतने टेक्निकल एरियाज में काम कर रहे हैं, उसको सिंप्लीफाई करके एक
बड़ी ऑडियंस को किस तरीके से समझाएं, या फिर ऐसी ऑडियंस को जो रोहित आप मुझे अभी बता रहे थे कि आप फंडिंग स्टेज पर हैं, आप फंडिंग के लिए पिच करना चाह रहे हैं. सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू speak about what is the problem that you're facing with that. जरूर भी एक भी चीज है कि मैंने एक और देखा है कि पिच के मामले में कभी कभी लोग 1-to-1 भी कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, उनको कुछ फीडबैक चाहिए किसी चीज पे. ये भी there's no problem, I'm happy to do that also. I end up doing that for a lot of people in our community, so I'm happy to do that. को किसी को ऐसे लगे कि हम कैसे बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि कभी कभी like recently I spoke to somebody who's doing wonderful work and she just felt totally like 6-7 चीजें उनको समझनी थी. वो भी कर सकते हैं, पर जैसे अगर किसी को कोई को आपको लगे कि कोई चीज समझ नहीं आई है, या तो आप एक चीज पे अटके हुए हैं, उन तरह की चीजें आप यहाँ पे ला सकते हैं. वरना हम बाद में भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं 1-to-1 पर्सनली, कोई प्रॉब्लम. नोटेड. थैंक यू सचिन. रोहित आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपको देखा अनम्यूट करते हुए. हाँ, एक्चुअली लाइक कि जैसे हम हमारे आइडिया की बात करें, तो बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि हम जो पुअर क्वालिटी MSW कंपोस्ट होता है, जो लैंडफिल्स में जैसे मान के चलो कि एक सिटी है मुंबई, जहाँ से हर घर से कचरा निकल के एक डंप साइट या लैंडफिल साइट में जाता है. वहाँ पे जाके वो कुछ प्रोसेस होता है, कुछ डंप होता है. तो जो मेनली ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो प्रोसेस होता है कुछ हद तक. बट वो ऑर्गेनिक पार्ट को हम आफ्टर प्रोसेसिंग एज ए कंपोस्ट बोलते हैं, बट उसमें उसकी जो क्वालिटी चाहिए रहते, कंपोस्ट की एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि वो उस प्रॉपर क्वालिटी में आए, जिससे जो सॉइल एप्लीकेशन का पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से हो. सो हमारा सॉल्यूशन ये है कि जो क्वालिटी प्रोसेस हो रही है, मतलब जो वेस्ट प्रोसेस हो रहा है वहाँ पे, उसकी क्वालिटी प्रॉपर नहीं होने की वजह से फार्मर्स ना उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना ही उस लैंडफिल की जगह खाली हो रही है, जिससे वो प्रोसेसिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो कहीं जा नहीं रहा, वो वहीं का वहीं पे एक पहाड़ बनते जा रहा है. सो हमारा प्लान ये है कि उसको रिड्यूस करके, मतलब उसको कलेक्ट करके हम और उसको रिफाइन करें और प्रोसेस करें विथ प्रॉपर क्वालिटी. जैसे जिस एरिया में जिस टाइप के प्लांट्स क्रॉप्स ग्रो होते हैं, उस क्रॉप के हिसाब से उसके कंपोस्ट की क्वालिटी या न्यूट्रिएंट्स उसको इन्हांस करके देन प्रॉपर फार्मर्स, हॉर्टिकल्चरर्स और नर्सरी वालों को दिया जा सके. सो बेसिकली ये है. तो हम लाइक टिल डेट की हमारा मेन जो वर्क है वो टेक्नोलॉजिकल वर्क अभी चल रहा है, जिसमें हम कंपोस्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करके इसी अलग अलग न्यूट्रिशन टाइप्स में बनाने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन हमारे पास मेन प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रॉब्लम ये छोटा नहीं है, ये ह्यूज लेवल का प्रॉब्लम है. लाइक every city has facing problem on this. So implement करने के लिए हमारे पास जो फंडिंग चाहिए, जो कैपिटल हमें चाहिए, वो किस तरीके से हम ला सके और किस तरीके से हम उसको अपने प्रोटोटाइप को, अपने प्रोडक्ट को और मार्केट में ला सके. इस रिलेटेड में आपसे थोड़ा आइडिया एंड हेल्प मिल जाए तो it will be very beneficial for us. रोहित जी, बहुत ही दिलचस्प आइडिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया है. और मैं इसमें थोड़े से पॉइंट्स बोलूं. मैं थोड़ा रिफ्लेक्ट इस मामले पे भी कर रहा हूं कि मैंने करीबन 12-13 साल सोशल इनोवेशन स्पेस में बिताए हैं. और तो मैं जस्ट ऑफ हैंड
सोच रहा हूँ कि कौन से एलिमेंट्स हैं आपके आइडिया के, कौन से हिस्से हैं जिनको आपको डेवलप करना चाहिए। एक तो है कि कभी कभी क्या होता है रोहित जी कि जब हमारा आइडिया टेक्निकल होता है तो आइडिया ऐसे लगता है कि हम यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर के साथ बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं हो, मतलब कि बहुत सारे मैंने सुने हैं, किसी ने बोला है हम लोग ये वाटर प्योरीफाई कर रहे थे, 32 टाइट्रेट ml होता है, 48 हाँ हाँ होता है बाय प्रोसेस ऑफ फैराडे, पता नहीं, मतलब ये प्रॉब्लम है कि उस वो एक स्टैंडर्ड बन गया है। पर नाउ अगर एक स्टेप बैक लें और अगर आपने जैसे आपने बोला कि पहाड़ है और हम उस पहाड़ को कोशिश कर रहे हैं कि वी कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू यूजेबल मटेरियल्स कि फार्मर्स यूज कर पाए, और ये बिल्कुल एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये दोनों एंड्स पे, वेस्ट के एंड पे और फर्टिलाइजेशन और फार्मिंग के एंड पे भी बहुत ही, मतलब बहुत ही विन विन सोल्यूशन हो सकता है अगर ऐसा हो पाए। पर ऐसा नहीं होता है, और इसलिए नहीं होता है। और तो आप प्रॉब्लम फ्रेमिंग को एक वेरी पावरफुल सोशल लेवल पे कर रहे हैं, और फिर आप आ रहे हैं बोल रहे हैं हम है सोल्यूशन, हम करेक्ट हमारा है, हम ऐसे कर रहे हैं। पर इस तो एक तो वो है कि फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत में ही इसको एक लैब फ्रेमिंग मत दें, इसको एक सोशल फ्रेमिंग दें कि सोसाइटी में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ऐसे दिखाएं। और फिर जब आप आगे बढ़ते हैं, दूसरी प्रॉब्लम मैंने देखी है इन किस्म के इन्वायरमेंटल टेक्निकल सॉल्यूशंस की कि ये लोग प्योरली टेक्निकल लेवल पे ही रहते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि आपको अलायंसेस बिल्ड करनी पड़ेंगी, आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनर करना पड़ेगा। तो ये भी दिखाना कि हम लेबोरेटरी साइंटिस्ट नहीं हैं, हमें मालूम है कि किन किन के साथ हमें रिश्ते बनाने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन को डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट। एंड इसमें मैं ये बोल रहा हूं, अगर आप सोचे कि सॉल्यूशन है आपका कंपोस्टिंग प्रोसेस, गलत, वो सॉल्यूशन का एक हिस्सा है। सॉल्यूशन आपका पूरा सिस्टेमिक सॉल्यूशन है कि इसके साथ पार्टनरशिप करके ऐसे ये सॉल्यूशन ये पूरा। क्योंकि अगर सॉल्यूशन टेक्निकल होता तो आईआईटी मद्रास से सबके दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्यूशन वो तो हिंदू में पब्लिश होते हैं ना, कि हमने लैब में उड़ता हुआ एक चिड़िया बना दी, वो चिड़िया देख सकती, मतलब कि वो तो निकलते रहते हैं पर उससे कुछ होता नहीं है। तो ये जो फ्रेमिंग इसकी करेक्ट, सॉल्यूशन फ्रेमिंग करेक्ट, पर्सनल क्वालिटी लाना कि कौन इससे अफेक्टेड है, क्यों अफेक्टेड है, और फिर दिखाना कि ये हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं, और हमें जो हेल्प चाहिए रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में, ये करने में, वो करने में, उस तरह का बोलेंगे तो आप जिस प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हो इतना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि क्योंकि कितने सारे सिस्टम्स हमारे कंट्री में ऐसे हैं कि पूरी तरह वो ऑपरेट नहीं करते हैं, कंसेप्चुअल लेवल पे वो करते हैं। पर जैसे आप इंटाइटलमेंट्स भी देखें कि जैसे बोला गया है कि कोई विधवा है, उनको 4,200 रुपीज मिलता है, तो ऊपर से डिक्लेरेशन होती है कि इतने सारे लोगों को मिला, पर इतने सारे लोगों को वो बैंक अटक जाता है, बैंक फेलियर हो जाता है, उनको कुछ प्रॉब्लम तो पहुंचता। सच्ची बात तो ये है कि सोल्यूशन इफेक्टिव नहीं बनता। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे इतने सारे हैं। अगर आप इस एरिया पे काम कर रहे हैं, पर कोई और स्विच पे अगर काम करता है या तो वो पूरे देश को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस तो है, पर किस तरह आप कहानी बोलेंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बस मेरा इस पे या एनीवे, बट ऑल द बेस्ट रोहित जी। थैंक यू सर। Anybody else would like to bounce off their ideas? Alicia, Rajni, Ashish, would you like to? I saw Afreen was here also. I think she left. I think this is a nice space to speak about your ideas with somebody who has been working on social innovations for 12 to 13 years. You don't know where, a small pitch would take you. I think it's right time to open up, and don't be shy, please. Also, Sachin is comfortable with having a one-on-one. Yes, Ashish, go ahead. Sorry. I had a question. So, good evening. I am Ashish, and I'm currently working on solving the noise pollution problem in built environments. And our main solution is using textile waste to build noise absorption panels. So my question was, I often struggle with beginning a pitch, like how can I have a good beginning or good introduction, because
many people say I need to have a startling fact or something like that, but I'm not always able to come up with something like that. And not all facts can be startling at the same time. So yeah, if you can help me with that. Ashish, the most startling thing is the noise. So the point is that this morning I was sitting and next door to me, someone was drilling. What startling fact is needed, Ashish? I mean, what stops you from starting your presentation by making the drilling sound? Like, who would not identify? Who would not be shocked and say that is, yeah, oh my God, every day. So why? So, my point is that, unlock your full creativity. You are trying to help a person understand how critical something is and how it affects them, and like you said, I lived in the US for 6 years. This sort of partition boards that absorb sounds and all is such a powerful thing, and even in Europe now, I've seen some construction sites that have these, and not just that, I think even using them for the purpose of like home protection. Like sometimes construction is going on, you can't convince the construction people because unka to, the cost model is such that there'll be some organizations that will implement some development real estate companies or whatever, but it could be a retail solution also. There could be creative retail solutions. So all I'm saying is that, when you say starting is a problem, don't always think the starting is a fact. Sometimes the starting can be a sound, sometimes it can be an image, sometimes it can be. So lean in, be as creative as possible. You are working on something that affects all of us every day. Okay, sure. Thank you. Yeah. Thank you. I mean, Ashish. it could be sound, it could be what happened to my neighbor below, which is they developed micro fractures in a glass because of the vibration. That is the level of drilling vibration that was happening. You are trying to provoke in the person you're pitching to a sense that this is real. You know what I'm talking about. You know how powerful this is. You know how it drives you crazy. So use whatever mechanism, facts and all. Again, will they not get excited with any fact like, there is 90% construction happening, but nothing works more powerfully than an emotional trigger, a sensory trigger. Okay, sure. Thank you. Welcome. थैंक यू आशीष. एक और टीम मैं चाहूंगी कि एक लास्ट टीम अपना इनोवेशन आइडिया पिच कैसे करना है इसके बारे में बात कर ले, उसके बाद हम रैप अप कर सकते हैं. मेरे पास 10 मिनट है. एनीबडी वुड लाइक टू स्पीक? आई नो अलीशा, योर टीम इज हियर. रोहित बात कर चुके हैं. रजनी, अभी या अलीशा, आप तीनों में से कोई भी बात कर सकते हैं. हेलो. हाँ जी रजनी, बोलिए. हेलो सर. जैसे कि सर रजनी, मेरा आपकी प्रोजेक्ट वॉइस ना एको कर रही है, गूंज रही है आपकी आवाज. 2 डिवाइस तो नहीं लगे ना? यस मैम. 2 डिवाइस है, एक डिवाइस को म्यूट कर दो प्लीज. म्यूट करना पड़ेगा और स्पीकर भी ऑफ करना पड़ेगा. अब ठीक है मैम? बढ़िया, बिल्कुल. हाँ जी बोलिए. मैम वो मीटिंग से हट गया इस वजह से. मैम जैसे कि सर हमारा जैसे कि प्रोजेक्ट है, जैसे कि 10 से 19 वर्ष की जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको स्वच्छता मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर बढ़ावा देना है. तो सर हम लोग कैसे मतलब वो कैसे अपने प्रेजेंट करें, मतलब इसको शुरुआत कैसे करें, मतलब ये मुझे थोड़ा जानना था आपसे सर. तो इंटरेस्टिंग. आई मीन मेरी राय ये है कि आपका जो बेस्ट वे टू स्टार्ट है, जैसे आपने अगर इस काम के बारे में दूसरे लोगों से बात की है तो क्या रिस्पॉन्स, कहाँ पे लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, कहाँ पे दिलचस्पी दिखाते हैं, जरा मेरे से शेयर करिए. जैसे कि सर हम लोग अभी मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, गर्ल्स की, वुमेन्स की और महिलाओं वगैरह की, तो सर्वे भी कर रहे हैं. तो उनसे हम लोग पूछ रहे हैं घर घर जाके कि आप लोग क्या यूज करते हैं, उनका डाटा अलग निकाल रहे हैं.
महिला नेपकिन का, कौन नेपकिन यूज करता है, कौन कपड़ा यूज करता है, इन सबका डाटा अलग अलग निकाल रहे हैं। और हमारे गांव में कितनी किशोरियां हैं, कितनी महिलाएं, ये सारा डाटा अलग अलग निकाल रहे हैं। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो एक तो चीजें हैं कि यहाँ पे पर्सनल कहानी यूज कर सकते हैं, किसी की कहानी जो जिनकी लाइफ इम्पैक्ट हुई है हाइजीन के कारण, पर दैट मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग इसमें हिस्सा बन के आप पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। क्योंकि टेंडेंसी ये होती है कि आप उन किशोरी बालकों के बारे में कहानी बोलेंगी, पर एक और ऑप्शन है कि अपने बारे में बोलिए कि आप जैसे जब ये काम कर रहे हैं आप पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और तीसरी चीज ये है कि एक चीज है कि ये एक जनरेशनल शिफ्ट है कि अगर एक टाइम ये हम शिफ्ट कर पाए तो पूरा ये फंडामेंटली ये सोशल फैब्रिक बदल सकता है कि उसके बाद ये हाई कल्चर का हिस्सा बन जाए, संस्कृति का हिस्सा बन जाए, और फिर ये मामला एक तरह से सुलझ जाए। तो अलग अलग इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं कि किस तरह आप इस कहानी को बोल सकते हैं। डायरेक्टली कहानी बोल सकते हैं, अपनी खुद की कहानी बोल सकते हैं, इसकी इम्पैक्ट की कहानी बोल सकते हैं। वही मैं सोच रहा हूँ कि ये इन तरह के ऑप्शंस हैं। और मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप जाके आपके खुद के एक्सपीरियंस में, जैसे आप अलग अलग लोगों के घर गए हैं, आपने देखे हैं वो क्या यूज करते हैं, सर्वे किया है, आपको क्या कुछ इंसाइट मिला है, कुछ सीखने को मिला है जो आपको बहुत एक्साइट किया हो, आपने सोचा हो कि ये हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे होता है, ऐसे हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है? नो सर, बट ऐसा तो कुछ नहीं, बट लौट के लोग क्वेश्चन हमसे करते हैं कि रजनी आप म्यूट पर हैं। यस यस मैम। जैसे कि आप मैम बोले हम थे लोग क्वेश्चन आपको करते हैं, लोग क्वेश्चन आपको करते हैं ना? यस क्वेश्चन करते हैं, तो लौट के मतलब और हमसे क्वेश्चन ही करते हैं, तो वो पूछते हैं हम लोग को, और अच्छा ही लगता है कि हम लोगों ने समझा रहे हैं कि पहले वो पहले वो कपड़ा यूज करते थे, तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि नैपकिन यूज करो। कपड़ा यूज करने से कितनी बीमारियां हो सकती हैं, कितनी बीमारियां होती है, इस बारे हम लोग उनको बताते हैं, तो वो लोग अच्छा ही बोलते हैं। तो कोई कॉन्वर्सेशन है आपकी, कोई या रिकॉर्ड, या कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, पर जो कॉन्वर्सेशन में दिख रहा हो कि किस तरह से वो जो आपकी जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसका क्या प्रभाव हो रहा है, ऐसी कोई ऑडियो कॉन्वर्सेशन भी है क्या? तो सर ऐसी कोई वीडियो तो नहीं है, बट फोटोज है बस। फोटोज है? यस सर। हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ कि इसको रियल कैसे बनाया जाए, इसको नंबर से दूर। एक तो है कहानियां, पर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इसको, जैसे कहते हैं ना, कोई बेटर, जैसे इंग्लिश में शब्द है विसरल, एक हिंदी में इसको क्या बोले, कौन सा शब्द होगा, जैसे इसको बिल्कुल इसका सही भाव निकालना, इसका रस निकालना, कोई हाँ, ताकि हो सकता है कि इसमें डायरेक्ट स्टोरी नहीं हो, पर किसी तरह आप एक डायलॉग, एक कॉन्वर्सेशन को निकाल पाए, या तो एक एक्सपीरियंस को निकाल पाए, ताकि लोगों को लगे कि ये एक कल्चरल एक्सचेंज है और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर है, और लोगों का माइंडसेट बदल सकता है। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि, तो एसेंशियली आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है, रजनी ना, इनका नाम रजनी है ना? हाँ या मैम। रजनी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इतने सारे विषय हैं कि इनमें अटकना नहीं है,
ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक और सोशल प्रॉब्लम है और इम्पोर्टेंट है, हाँ हाँ इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, सुना है इसके बारे में। ये फीके फीके जवाब से नहीं होगा। इसी तरह इसको अगर आपको पर्सनल बनाना है तो या तो अपने आप को लाइन पे डालना पड़ेगा, या तो एक्सपीरियंस को निकालना पड़ेगा ताकि लोगों को दिखे कि ये हो क्या रहा है और वहां से वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करें। किसी तरह ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास जवाब नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा रास्ता आपको एक जनरल सोशल इंपॉर्टेंट सोशल इशू के पे काम कर रहे हैं उससे दूर हम पहुंच पाएंगे। तो वो वह भी उस पे देखना पड़ेगा, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ इश्यूज बीइंग वर्कड ऑन that are very important but are not able to really click or connect because they are not able to provoke a sense of this is so interesting, you know, that kind of thing. That feeling is not coming, and the truth is human beings are like that. अगर उनको ऐसे स्टिमुलेट नहीं किया गया तो दिमाग में रहता नहीं है। Definitely. Thank you for that input. Yeah. We will work on that. Rajni. दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे being able to differentiate between general literacy and something in the approach which is ingenious. So जैसे the difference between saying हम लोग literacy करते हैं और literacy बहुत important है, saying कि लड़कियां दूसरी लड़कियों के साथ बात करके, I'm not saying that is the model. मुझे नहीं मालूम कि exact model क्या है, but model बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको निकाल के फिर दिखाना ये भी एक रास्ता है ताकि ये जनरल लिटरेसी बहुत सारे बनना, लीगल लिटरेसी, जेंडर लिटरेसी, दे आर नॉट एबल टू एलिवेट देमसेल्व्स। बैक टू यू। Makes sense. Thank you. We will work on that. हम उस पे भी काम करेंगे। I think यहाँ पे हमारा मुद्दा ऐसा है रजनी कि कहानी निकालनी है इस तरीके से जो पहले किसी ने बोली नहीं है, मगर फिर भी ऐसी जो ऐसा अनुभव जो सभी लोग उससे जा चुके हैं। तो वी विल सिट ऑन दैट, हम इस पे बात करेंगे, हम इस पे बैठेंगे। बट आई थिंक इट्स टाइम टू रैप अप नाउ। हमारा 5:30 का अलार्म हो चुका है, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन participating and being able to share your ideas. अगर आपको आगे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पूछ नहीं पाए तो फिर मैं आपको आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप सचिन जी को भी ईमेल कर सकते हैं, वो आपसे बात करके। हाँ, मैं ईमेल आईडी भेज देती हूँ, तो मैं ईमेल आईडी भेज दूंगी सचिन जी की। One thing that's also really useful is doing small group guidance. Small group guidance I found is even more useful than doing one-to-one guidance because people are able to kind of learn from each other. But that curation of which group, किसको एक साथ डालना है, or you know that I leave to you. But I'm happy to do any small group mentorship and guidance if it's needed. ठीक है, वर्क्स। तो आप मुझे ईमेल कर दें, मैं देखती हूँ कि 2-3 टीम साथ में बैठ के सचिन जी से किस तरीके से बात कर पाएंगी जिनके सॉल्यूशंस मोर और लेस सेम टू सेम है। ठीक है। Thank you so much everybody for coming, and thank you so much Sachin for being such a wonderful trainer for us. You've always been very attentive and also taking into consideration the time, the language, the socio-political spaces where everybody comes from. Thank you so much for giving us your very kind and insightful ideas. We will definitely keep you updated with the final event and how it goes and where each of our team is, because we're hoping that the longevity of their ideas stays on even after the journey of the challenge. So that is the idea. And with that, thank you so much. I hope everybody has a great weekend. Thank you. Thank you, Sachin. Thank you.